take the association of all of you, Prabhuji Mataji. So we'll do the Śrīmad-Bhāgavatam, verse Canto 2, chapter 9, verse number 3, Prabhuji Mataji. So we'll have the Radha Madhav first, and then we start the discussion with wonderful topics of Śrīmad-Bhāgavatam. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivardhari, Jaya Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivardhari, Jaya Girivardhari, Yashodanandana Vraj Jana Ranjana, Yashodanandana Vraj Jana Ranjana, Yashodanandana Vraj Jana Ranjana, Yashodanandana Vraj Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanchari, Yamuna Tira Vanchari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. श्री राधा माधव जी की जय, श्री राधा नील माधव जी की जय, श्री राधिका रमण जी की जय, कुंज बिहारी जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, नित्याई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां च सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। Today's topic which we have, the living entity when it gives the I and mine, then what happens? And Śrīmad-Bhāgavatam, when it speaks on any subject, that subject is always for our own benefit. And this chapter particularly, which we are seeing, the Lord in the heart. So we'll see the 2.9.3, Prabhuji. So I think we have on the screen, this you can follow the verse, and probably for the benefit of those who wants to have better understanding in Hindi, so you can read in English, those who wants on the screen, and I can read in Hindi on the side by side. So we'll go to the word meaning first. Yarhi Vava Mahimni Swe Parasmin Kala Manayoho Rameta Gat Sammoha Tyaktva Udasate Tada Ubhayam Yarhi Vavamahimni Swe Parasmin Kalamayayoho Ramet Gat Sammoha Taktva Dodaste Tadobhayam Yarhi Vavamahimni Swe Parasmin Kalamayayoho Rameta Gat Sammoha Taktva Dasate Tadobhayam Yarhi Vavamahimni Swe Parasmin Kalamayayoho Rameta Gatta Sammohas Takvodaste Tadobhayam. So word to word meaning, Prabhuji Mataji. Yarhi किसी समय, वाव निश्चित ही, महिमनी महिमा में, स्वे अपने आप, परस्मिन परमेश्वर में, काल समय, मायो भौतिक शक्ति माया का, रमेत भोग करता है, गत सम्मोह भ्रांत धारणा सम्मोह से मुक्त होकर,
त्यक्त्वा त्याग कर उदास्ते पूर्णतः तदा तब उभयम दोनों मैं तथा मेरे की भ्रांत धारणा। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं मैं तथा मेरा को त्याग देता है और शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाता है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर प्रपोर्ट दिया है, तो those who want to read in English they can read in the screen and I will read in Hindi from my mobile। मैं तथा मेरा जीवन के ये दो भाव दो श्रेणियों में के मनुष्यों में प्रकट होते हैं। निम्न अवस्था में मेरा भाव प्रमुख रहता है और उच्चतर अवस्था में मैं का भाव। पशुओं में मेरा भाव कुत्ते तथा बिल्लियों तक में देखा जा सकता है, जो इसी मेरा भाव की भ्रांति के अंतर्गत परस्पर लड़ते रहते हैं। मानव जीवन की निम्न अवस्था में भी यही भाव, यह मेरा शरीर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरी जाति है, यह मेरा राष्ट्र है, यह मेरा देश है, इत्यादि रूपों में उभरता है। चिंतन की उच्च अवस्था में यही मेरा की भांत धारणा मैं हूं अथवा मैं ही सब कुछ हूं रूप में बदल जाती है। प्रभुपाद जी का पंच पॉइंट है, जब इस से ऊपर उठते हैं तो उच्च अवस्था में मैं हूं अथवा मैं ही सब कुछ हूं रूप में बदल जाती है। मनुष्य की नाना श्रेणियां हैं तथा मैं और मेरे को विभिन्न रूपों में ग्रहण करती हैं, किंतु मैं की वास्तविक महत्ता का बोध तभी होता है जो मनुष्य की चेतना हो कि मैं भगवान का शाश्वत दास हूं। यही शुद्ध चेतना है और सारा वैदिक साहित्य हमें जीवन के इसी भाव की शिक्षा देता है। मैं भगवान हूं या मैं पर ब्रह्म हूं कि भ्रांत धारणा मेरे की धारणा से भी अधिक घातक है। यद्यपि वैदिक साहित्य में कहीं कहीं ऐसे निर्देश हैं कि मनुष्य अपने को भगवान के स्वरूप समझे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सभी प्रकार से भगवान के ही समान हो जाता है। निसंदेह अनेक बातों में जीवात्मा तथा भगवान में एक रूपता है, किंतु जीवात्मा अंततः भगवान के अधीन होता है और स्वाभाविक दृष्टि से वह भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के निमित्त बना है। इसलिए भगवान बद्ध जीव को अपनी शरण में बुलाते हैं। यदि जीवात्माएं परम इच्छा के अधीन न होती तो उन्हें शरण में आने के लिए क्यों कहा जाता? यदि जीव सभी प्रकार से ईश्वर के समकक्ष होता तो फिर वह माया के अधीन क्यों रखा गया है? हम इसकी व्याख्या कई बार कर चुके हैं कि भौतिक शक्ति माया भगवान के द्वारा नियंत्रित है। भगवत गीता 9.10 में माया के ऊपर भगवान की नियामक शक्ति की पुष्टि की गई है। क्या कोई जीवात्मा जो अपने को ईश्वर के समकक्ष समझता है, मानता है, माया को वश में कर सकता है? मूर्ख। मैं जवाब देगा कि वह भविष्य में कर सकता है। यदि ये मान लिया जाए कि वह भविष्य में ऐसा कर सकेगा तो फिर वह अभी माया के वश में क्यों है? भगवत गीता का कथन है कि परमेश्वर की शरण में जाकर के मनुष्य माया के वश से मुक्त हो सकता है, किंतु यदि वह समर्पण नहीं करता तो फिर जीवात्मा माया से कभी भी पार नहीं पा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति के अभ्यास से अथवा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता से स्थित होकर मैं की भ्रांति को त्यागे। बिना किसी काम धंधे या नौकरी के गरीब मनुष्य जीवन में अनेक कष्ट भोगता रहता है, किंतु सौभाग्यवश यदि उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है वह तुरंत सुखी हो जाता है।
सभी शक्तियों के नियामक भगवान की श्रेष्ठता को अस्वीकार करने में कोई लाभ नहीं, किंतु मनुष्य को चाहिए कि वे अपने को भगवान का शाश्वत दास मानते हुए अपनी स्वाभाविक महिमा को प्राप्त करे। बद्ध जीवन में जीवात्मा माया का दास रहता है, किंतु मुक्त अवस्था में भगवान का शुद्ध अकिंचन दास रहता है। भगवान की सेवा करने के लिए आवश्यक है कि प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहा जाए। जब तक मनुष्य मनोरथों का दास है, वह मैं तथा मेरा के रोग से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता। परम सत्य माया की शक्ति के द्वारा दूषित नहीं होता, किंतु वही उस शक्ति का नियंता है। आपेक्षिक सत्य माया से आवृत हो सकते हैं, किंतु जब कोई परम सत्य का साक्षात्कार कर रहा होता है तो सर्वोत्तम उद्देश्य की पूर्ति होती है। जिस तरह सूर्य को समक्ष देखने पर सिर के ऊपर आकाश में सूर्य प्रकाश से पूर्ण रहता है, किंतु जब वह दृश्य आकाश में नहीं दिखता तो अंधकार छा जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य परमेश्वर के समक्ष होता है तो उसके सारे मोह नष्ट हो जाते हैं। जो उनके समक्ष नहीं होता वह माया के अंधकार में रहता है। और इसकी पुष्टि भगवत गीता 14.26 में इस प्रकार हुई है। माम चो विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणाम संतीत्य तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः मनुष्य को चाहिए कि निष्ठा पूर्वक भगवान का पूजन, भगवान की महिमा का गायन, सुपात्र से न कि पेशेवर मनुष्य से, प्रत्युत किसी भागवत व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण तथा शुद्ध भक्तों की संगति करके इस प्रकार भक्ति योग के विज्ञान को गंभीरता से ग्रहण करे। उसे मैं या मेरा की भ्रांतियों से गुमराह नहीं होना चाहिए। कर्मियों को मेरा भाव प्रिय है तो ज्ञानियों को मैं भाव, और ये दोनों ही माया के बंधन से मुक्त होने के योग्य नहीं है। तो 5 पॉइंट रूपा जी ने दिया है कि कर्मयोगी ज्ञान योगी अगर मैं और मेरा है तो बंधन से मुक्त होने के योग्य नहीं है। श्रीमद् भागवत तथा मुख्यतः भगवत गीता में ये दोनों मनुष्य को मैं तथा मेरा की भ्रांति से उबारने के लिए हैं, और शिला व्यास देव ने इन दोनों को पतित आत्माओं की मुक्ति के लिए ही लिखा है। जीवात्मा को ऐसी दिव्य स्थिति में रहना चाहिए जहां काल तथा माया का वश ना चले। बद्ध जीवन में जीवात्मा को भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल के सपनों द्वारा प्रभावित होना पड़ता है। चिंतक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा तथा अहंकार को जीत करके भविष्य चिंतन द्वारा वासुदेव या परमेश्वर बनकर काल पर विजय पाना चाहता है, किंतु यह विधि परिपूर्ण नहीं है। सही विधि तो यह है कि भगवान वासुदेव को हर प्रकार से परमेश्वर मान लिया जाए, और ज्ञान के अनुशीलन की परम सिद्धि यह है कि भगवान की शरण में जाया जाए, क्योंकि वे ही हर वस्तु के स्रोत हैं। केवल इसी भाव में मैं तथा मेरा की भ्रांति से छुटकारा मिल सकता है। श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता दोनों ही इसकी पुष्टि करते हैं। शिला व्यास देव ने अपने महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत द्वारा मोहगत जीवात्माओं के लिए आत्म तथा भक्ति योग विधि में विशेष योगदान किया है। बद्ध जीव को चाहिए वह इस महान ज्ञान का पूरा लाभ उठाए। शिला प्रभुपाद की। सुब्रजी माता जी, in this particular verse, what we are seeing, there are two situations here. What we see that as soon as living entity becomes situated in his constitutional glory and begins to enjoy the transcendence beyond the time and material energy, काल और माया से छुटकारा पाने जो उससे दूर जाकर कब जाया जा सकता है, जब वो he is situated in his constitutional glory. So what is the constitutional glory, Prabhuji Mataji? Let us understand that point first. I am father,
I am teacher, I am God, I am demigod, I am this, I am that, I am that. All these titles which we have, they are purely related to the body which we have. Out of 84 lakhs yonis, 8.4 million species of the universe, we may be in one of the any body, but we keep on identifying ourselves with the body. Somebody's dog, okay, I'm dog. Somebody's cat, I'm a cat. And this is going on from the ages. And our solution for this, like Srila Prabhupada wrote in the purport, it is only and only possible when we give up this me and mine. And me and mine is so much engraved into our heart that by our own endeavor, we cannot get out of this. And for that, what we need? We need the guidance in the form of Guru and the mercy from the Krishna. So these two things are must. So when Guru Kripa and Hari Kripa, ये दोनों जब हमारे पर होती हैं, तो naturally उस situation में what can happen? We identify what is our position. Our constitutional position is that we belong to Krishna, and that's what Krishna says in Bhagavad Gita 15.7. Mame vanso jeev loke jeev sanatana mana sashtani prakriti karsati. That mame anso jeev loke, all the living entities of all the creation, not only this material, this world, this planet, all the planets, all the universes, all the galaxies, complete material creation. Everybody, whatever is there, is my part and parcel. And Prabhupada wrote, everything is coming from Krishna. So what he said, that Aham Sarvasya Prabhu in 10.8 Bhagavad Gita, everything is coming from me. And then we look upon the family relationship, like हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, दादा हैं, जिस हमारे गुरु हैं, इन सब के बारे में हम लोग सोचते हैं. But ultimately, all the relations are based on our bodily relationship. And body relationship basically will die as soon as we leave the body. Today we are there and tomorrow we are not there. So who is our father today? Once we leave the body and he leaves the body, we don't have any relationship. And that we see when we see in Śrīmad-Bhāgavatam 6th canto, the story of Chitraketu Maharaj. In Chitraketu Maharaj Katha, what we see, that Angira Muni, Narad Muni come to Chitraketu Maharaj to give the real knowledge, the Divya Gyan to him. But he wants only son. I don't have a child and I need a child. And they, somehow or other, they could not convince Chitraketu Maharaj to take the message of Krishna, but they wanted son. So he got a son. But son was supposed to give a sorrow and happiness. So he was very happy the moment his queen Katuditi got the son. Out of 1 crore queen, she was the only one she had son. But same son became the object of jealousy for the other 1 crore minus 1 queen. And they were so much jealous because king was spending, Chitraketu Maharaj is spending so much time with Katuditi only with her. Then they become so jealous. Then finally what they did, they simply gave poison to that boy, the prince, 5 years. And then Kuditi saw that my son is gone. Everybody started crying. King came, he is crying, he left whole kingdom. There is no ruler there and everything is topsy-turvy, everything is bad. Then what happened? Immediately, Narad Muni comes. When Narad Muni comes, king requests, I cannot live without my son. Can you are the yogi, you are the Devarsi, you please give me my son back. So Narad Muni, by his potency, he brings the soul back to the body, and when the soul comes to the body, and Narad Muni says, look prince, you get up, see your mother, father are crying. And the boy says, mother, father, I don't know these people are my mother, father. Every birth I am getting my mother, father.
So who is our real father? That is the constitutional position. We have to understand who is our real father, who is our real well-wisher. And this information, Krishna very clearly gives in Bhagavad Gita. There is no need to look here and there. He simply says in 9.17, what he says? Pitamasa jagto mata dhata pitama vedam pavitram omkara riksam yurevcha. Pitam asya jagto. I am the father of all this creation. पूरे संसार का मैं पिता हूं, माता भी हूं, और क्या हूं? धाता भी हूं, सृष्टा भी हूं, और पिता मैं भी हूं. What more information we want? Krishna himself is telling that our relationship with Krishna is this is the relationship. We need to understand that relationship. And when Krishna gives this information, he is not only our father, grandfather, or creator. He not only that, he says further in 5.29, what he says? Bhoktaram yugatapsam sarulokmayesram suhrda sarvabhutanam gyatmamam samrithantim richat. That if you want somebody your well-wisher, why do we want everybody should be our well-wisher? But our real well-wisher is Krishna. He says suhrda sarvabhutanam. All the living entities, I am the well-wisher for them. Truly well-wisher for them. So this point we have to understand, Prabhuji Mataji. And what we see here, if you really go to the pages of Śrīmad-Bhāgavatam, when this discussion is going on, the position of Śrīmad-Bhāgavatam which gives us how this benefits to us. If you remember, we have already gone through, you already have seen in the 8th chapter of this canto, 2.8 chapter. If you see the verse number 4, because what is happening, Parikshit, the title is the questions raised by Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj is asking these questions. So what he is saying in 2.8.4, he says, Sranavata Sraddhaya Nityam Pranatascha Swacheshtitam Kale Nati Dirghena Bhagavan Vistehirdi. Bhagavan Vistehirdi. See, to understand our true position, our constitutional position, only way is possible that our body is made of 5 elements. Bhumi, Rapo, Anlo, Vayu, Khammanu, Buddhi, Revcha. These 5 gross elements, where from they are coming? This says, Krishna says, so they are also coming from them. And what we think, oh, today I have this boss, whomsoever, and I am fully surrendered to my boss. But we don't understand who is our real boss, Prabhuji Mataji. Because Krishna is our real boss. And that boss who is there, he has his boss. If we keep on making, then we go to CEO. But CEO is not the ultimate boss even. See, we must engrave into our brains this point that only well-wisher is Krishna, only real person who is caring about us is Krishna. Then when we do that, so what we will do? We will not worry about bodily relationship. And that is what is happening. In Śrīmad-Bhāgavad Gita, whole of Bhagavad Gita, why Arjuna is in this situation? Where if we see the 1.47 verse, that he simply Visaja Sasaram Chapam. He left his bow, Gandhi, and he went inside the chariot and sat there. And then what we see when Sanjay is telling that he is having eyes in his tears in his eyes, and he's Dukhukvinni Manasa. He's so much sad, and this sadness or this problem has come to Arjun only because of identifying his body relationship and nothing else. Because of that, he's thinking, oh, he's my guru, he's my teacher, he's my grandfather, and then how can I kill them? Gurunatvai bhavan, bhokcham bhaktim apiloke. I can go and beg, but I cannot kill my teacher, my lessons. So this is the problem. So in this verse, Parikshit Maharaj is saying to Sukadeva Goswami, Sanvata sadhya nityam, gunatascha swacheshtitam, kalena narthi dirghena, bhagavan viste hridihi. That persons who hear
Śrīmad-Bhāgavatam regularly, Nityam Bhagavata Sevaya. The persons who hear the Śrīmad-Bhāgavatam regularly and are always taking the matter very seriously will have personality of Goddess Sri Krishna manifested in their hearts within a short time. नार्ति दीर्घेण, दीर्घ नहीं है, देर नहीं लगने वाली है, very soon. That's why it says अन्य चेता सत्यम यो योमा विंतसा तस्याम सुलभा पार्था नित्य युक्तस्य योगिना. सुलभा पार्था, पार्थ, very easily I am available, but for whom? Nitya yuktasya yogina, those who is constantly attached to me, constantly remembering. Smriti nityasaha. Same thing is given here, but result of that is very soon, in a short time, Krishna will manifest in our heart. But to manifest Krishna in our heart, what we need, Prabhuji Mataji? Only thing given here, hearing Śrīmad-Bhāgavatam. Who hears the Śrīmad-Bhāgavatam? Demons, they hear the Śrīmad-Bhāgavatam? No. Demons don't hear the Śrīmad-Bhāgavatam. What? Why they don't hear the Śrīmad-Bhāgavatam? Demons believe in their prowess. They think, अरे मैं तो मेरे साथ पास तो इतना बल है. हिरण्यकश्यप, he went to fight Lord Vishnu. He went to Vishnu Loka to fight with him because his brother is dead. Hiranyaksha is dead. So Hiranyakashipu is thinking, oh, I am the only one who is supposed to be called Bhagwan, and nobody else. And what Prabhupada is saying, even at the higher stage, these demons, they consider that we are the topmost. And this is the, when we say I, me, mine, that is the root cause of our falling continuous chain of this birth and death, 84 lakh souls. In the purport of this verse, Srila Prabhupada writes very nicely. He says, Maharaj Parikshit had no more than 7 days to live. But for others, Maharaj Parikshit personally recommends that one hear Śrīmad-Bhāgavatam regularly, Nityam. Whatever time you all devotees are doing nicely, every day you are attached to this temple and you are hearing Śrīmad-Bhāgavatam. So, Prabhupada says that Parikshit Maharaj had only 7 days. In those 7 days, the result of the hearing Śrīmad-Bhāgavatam was, even in between, I think 3rd day or 4th day, Sukdev Goswami asked Parikshit Maharaj, Parikshit, last so many days, you are sitting here without drop of water, without any food, and nothing, you are just simply sitting here hearing Śrīmad-Bhāgavatam. Go take some rest. What Parikshit Maharaj says? Gurudev, I don't need anything. My all bodily, I don't feel even. I don't feel this body necessity of eating and drinking or anything. That is the beauty of Śrīmad-Bhāgavatam. When you really hear them the proper, so Prabhupada write in the purport, not from the professional reciters, from the proper source in discipline succession, then you have this message. And that's Parikshit Maharaj is saying to Sukdev Goswami. Further, Prabhupada says, always by one's own effort and with the serious devotion also. So we have to hear the Śrīmad-Bhāgavatam this way. That will help, it's very bold statement, that will help one to see the Lord Sri Krishna manifested in one's heart within no time. We follow these footsteps, within no time we'll have Krishna manifested in our heart. In the next verse, Parikshit Maharaj is saying, Pravishta karna randhrena swanam bhava saroruham dhunoti samalam Krishna salilasya yatha sarat. The sound incarnation of Lord Krishna. Śrīmad-Bhāgavatam kya hai? It is the sound incarnation of Lord Krishna. उद्धव, भगवान ने जब उद्धव जी को बोला कि भी अब मैं इस श्लोक को छोड़ करके, पृथ्वी को छोड़ करके अपने धाम जाऊंगा, स्वधाम जाऊंगा, श्रीमद्-भागवतम के महात्म्य में, चैप्टर मुझे याद नहीं, महात्म्य 6 चैप्टर है शुरू में, आई थिंक 3rd या 4th चैप्टर में है शायद ये कथा। तो उसमें उद्धव इतने व्याकुल हुए, he was so disturbed
that he said, Krishna, I cannot live without you. You are my life and soul. आपके बिना मैं जी नहीं सकता, मैं यहाँ पर रह नहीं सकता. भगवान ने ऑर्डर किया उद्धव को कि उद्धव तुमको यहाँ रहना है. क्यों रहना है? कलयुग के लोगों का कल्याण करने के लिए. You have to stay here. But how will I without you? So Krishna said, don't worry, I will be in the form of Śrīmad-Bhāgavatam available in the Kali-yuga. You can feel me, you can touch me, you can see me, you can hear me, whatever you want, you can do with me in the form of Śrīmad-Bhāgavatam. And in front of Uddhava, Krishna entered in the Śrīmad-Bhāgavatam, and that Bhāgavatam was with Uddhava. So this is the position of Śrīmad-Bhāgavatam. So Pravishta Karnarandhrena Swanam Bhav Saroruham. The sound incarnation of Lord Krishna, Supreme Soul, Śrīmad-Bhāgavatam, enters into the heart of a self-realized devotee, sits on the lotus flower of his loving relationship. So, जो भक्त का संबंध है भगवान के साथ में इतना मधुर है, इतना सुंदर है कि श्रीमद् भागवतम के द्वारा जब हमारे कान से श्रीमद् भागवतम प्रवेश करती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे हृदय के अंदर वो भगवान स्थापित हो जाते हैं. और thus cleanses the dust of material association. भगवान हमारे हृदय में क्यों नहीं आते? अभी बलराम जयंती गई 12 तारीख को, और आज 14 तारीख है. आपकी तो 15 है, हमारे यहाँ तो 14 है. तो 12 तारीख को बलराम जयंती. बलराम भगवान जो है 7th चाइल्ड जो माता देवकी के हैं, उसके पहले 6 बच्चे आए और 6 बच्चों को कंस ने पकड़ के पैर पकड़ करके पत्थर में पैर करके मार दिया. गोपाल चंपू में भी लिखा है, परपोर्ट में भी लिखा है, आई थिंक 10th कैंटो में और 10th कैंटो में 1st चैप्टर में, कि जो ये 6 बच्चे जो थे, जो 6 पहले आए, वो कौन है? जिस तरीके से मन का जो मरीची हैं वो मन से प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार से मन से जो प्रकट होने वाले हमारे असुर, हमारे शत्रु हैं, कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य. ये 6 हैं. और जब ये 6 हमारे हृदय से जाते हैं तो हमारा हृदय उस रूप में गुरु को ग्रहण करने के योग्य बनता है, और गुरु के हृदय में प्रकाश होने से हमारे हृदय के अंदर भगवान की स्थापना हमारे हृदय के अंदर विराजमान. तो माता देवकी के यहाँ से जब ये 6 चले गए हैं, जो 6 पहले आए थे, उनको इसकी कंपैरिजन किया गया है. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य. इनके जाने के बाद में फिर भगवान बलराम 7th इनकारनेशन में आते हैं, और 10th कैंटो के आई थिंक 2nd चैप्टर के 8th वर्ष में भगवान बोलते हैं कि देवकी के घर में योगमाया बोलते हैं कि जो मेरा जो अवतार है, जो मेरा हेड ऑफ इनकारनेशन है, वो है बलराम. संकर्षण के जो अवतार हैं वो उनके गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में भेज दो. तो इसीलिए हमारा हृदय जब शुद्ध होता है, वही यहाँ पर लिखा है कि उस समय जो thus cleanses the dust of material association such as lust, anger, hankering. जो हमारी उद्विग्नता है, क्रोध है, लोभ है, काम है, इन सबको सफाई करते हैं. कब? जब श्रीमद् भागवतम हमारे हृदय के अंदर जाती है. और प्रभुपाद जी ने इसके परपोर्ट में लिखा है कि इट इज सेड दैट ए सिंगल प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कैन डिलीवर ऑल फॉलन सोल्स ऑफ द वर्ल्ड. A single pure devotee of the Lord can deliver all the fallen souls of the world. अब आप देखो, शिला प्रभुपाद जी ने अकेले सबने प्रयास किया. जब भक्ति ठाकुर महाराज के कितने शिष्य वेस्ट में गए, सबने प्रयास किया, लेकिन कृपा किसके ऊपर हुई? शिला प्रभुपाद जी के ऊपर कृपा हुई. और उन्होंने पूरे संसार में अनेकों लोगों का उद्धार किया, उनको डिलीवर किया. Thus, one who is actually in confidence of a pure devotee like Narad or Sukdev Goswami, and thus is empowered by one's spiritual master, as Narad was by Brahmaji, can not only deliver himself from the clutches of Maya or illusion,
but can deliver the whole world by his pure and empowered devotional strength. Such a beautiful and strong purport, Prabhupada is saying, bold declaration. He pure devotee alone, single-handedly, he can deliver the whole world. And see the Prabhuji Mataji beauty. पारसमणि होती है, हम जानते हैं। पारसमणि क्या करती है? पारसमणि से कोई भी धातु लोहे को स्पर्श करो, उसको क्या बना देती है? सोना बना देती है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो पारसमणि से भी ऊपर है। कैसे? कि पारसमणि लोहे को सोना बना सकती है, लेकिन पारसमणि लोहे को पारसमणि नहीं बना सकती। पारसमणि ने इस लोहे को टच किया है, वो दूसरे को लोहा सोना नहीं बना सकता, वो सोना बन गया, काम खत्म हो गया। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, जब उसकी कृपा प्राप्त होती है किसी भक्त को, उसको वो अपने जैसा शुद्ध भक्त बना सकता है, और वो शुद्ध भक्त आगे लोगों को शुद्ध भक्त बना सकता है। तो पारसमणि पारसमणि बना सकती है। ये अद्भुत जो क्रम है वो किसमें हो सकता है? पॉसिबल है ओनली शुद्ध भक्त के साथ। भगवान का जो हमारे हृदय के अंदर जो आना है, हम लोग सोचते हैं कि हम तो इतने गिरे हुए हैं, वी आर सो फॉलन, हाउ कृष्णा विल कम टू हार्ट। बट इफ यू टेक द सेल्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम, प्रभु जी माता जी, इट इज रियली नॉट हार्ड। We have to simply follow the instruction of these verses, this kind of verses. Parikshit Maharaj again says in 2.8.6, what he says? Dhautatma purusha Krishna padamulam ne munchati mukta sarvapariklesha mukta sarvapariklesha pantha swasaranam yatha. A pure devotee of the Lord whose heart has been cleansed by the process of devotion service never relinquishes the lotus feet of the Lord. हम कैसे पहचान करें कि वे शुद्ध भक्त है नहीं है? हमको तो पता नहीं, हमारे पास तो कोई टेस्ट है नहीं कि हम किसी के पास गए वो शुद्ध भक्त है या नहीं है। बड़ा सुंदर बात बताई गई है कि जब आप किसी के पास बैठते हो, अगर वो भगवत चर्चा करता है और उसके मुख से भगवत चर्चा के अलावा दूसरा कुछ नहीं निकलता है, इसका मतलब क्या है? उसके हृदय में केवल भगवान और भगवान की कथा है, दूसरी चीजें है ही नहीं। और भगवत चर्चा जब वो कर रहा है, इसका मतलब वो शुद्ध भक्त है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवत चर्चा के साथ में समाज, इस दुनिया भर की अलग बातें करता है, उनमें समय खराब करता है, वो शुद्ध भक्त के आसपास भी नहीं है। तो इसमें परीक्षित महाराज कहते हैं, For they fully satisfy him. The traveler is satisfied at home after a troubled journey. Example देते हैं, कोई व्यक्ति यात्रा पे गया और बड़ी कठिन, घर आके जैसा उसको सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त है उसके हार्ट जो है उसका कैसा साफ हो जाता है कि वो कभी भी भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करके उनको छोड़ता प्रभु जी माता जी नहीं। और एक बड़ी सुंदर बात परीक्षित महाराज कहते हैं आगे 24 वर्ष में, इसी चैप्टर के 8 के, सर्वम एतच्च भगवन् प्रपच्छतो मेनु पूर्वसः तत्वतो अर्युदाधर्तुम प्रपन्नाय महामुने। महामुने सुखदेव गोस्वामी ले कह रहे हैं, ओ ग्रेट सेज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। ये फर्स्ट टू स्टेटमेंट प्रभु जी माता जी वी हैव टू अंडरलाइन कि जब आप भागवत सुनते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं, तो जब सुनते हैं उसमें इन्होंने कहा ओ ग्रेट सेज, और नॉट ओनली ग्रेट सेज, कह रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। जो भगवत कथा बताते हैं वो भगवान के दूत है एक तरीके से। काइंडली सेटिस्फाई माई इंक्विजिटिवनेस इन ऑल दैट आई हैव इंक्वायर्ड फ्रॉम यू। बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं परीक्षित महाराज ने इस चैप्टर के अंदर। इसका टाइटल ही है क्वेश्चंस रेज्ड बाय परीक्षित महाराज। बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, मेनी क्वेश्चंस ही हैज आस्क्ड, बट ही इज द बेस्ट डिसाइपल एक्चुअली, ही इज द एपिटोम ऑफ द डिसाइपल। वो क्या कह रहे हैं अभी इसमें? कह रहे हैं कि आई हैव इंक्वायर्ड यू क्वेश्चंस, आपसे पूछा है मैंने, बट मे बी आई मे नॉट हैव इंक्वायर्ड फ्रॉम यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मैंने सब कुछ आपसे हो सकता ना भी पूछा हो,
of my questioning. Since I am a soul surrendered unto you, please impart full knowledge in this connection. मैंने जो पूछा है वो तो ठीक है, जो नहीं भी पूछा है उसके बारे में आप मुझे, जब हम किसी के पास जाते हैं, किसी गुरु के पास में जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, हमारा भाव क्या रहता है उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर हमारा भाव ये है कि हम जा रहे हैं और चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, तो हम जो जानते हैं, वी गो एंड टेल, ओ गुरुजी मुझे ये पता है, ये पता है, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये रट लिया, मेरे को इतने श्लोक आ गए, अब ये चर्चा करते हैं, इसका मतलब हम गुरु हैं कि वो गुरु हैं? आप सोचिए प्रभु जी, ये हमारा स्थिति होती है जब हम किससे पूछने जा रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने भगवत गीता में क्या स्पष्ट कह दिया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ज्ञानी तद्दर्शिना। तद्विद्धि प्रणिपातेन, अगर किसी से कुछ जानना है, उसकी स्थिति क्या है, पहले उसकी शरण में जाओ, प्रणिपातेन, और परिप्रश्नेन सेवया, पहले सेवा करो फिर प्रश्न करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधे जाकर के बुलेट की तरह प्रश्न ठोक दिया कि ये बताइए जी, which is not as per the भगवत गीता इंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लाम। सी 84 लाख योनियों में से जितनी भी, जैसे पद्म पुराण में जो बताया गया 84 लाख योनियां हमारी जो है, जल जा नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति, 20 लाख कौन है, जो पेड़ पौधे, जो पेड़ वगैरह है, जो स्थिर रहते हैं, चलते नहीं है, जो एक जगह खड़े रहते हैं, वो 20 लाख है। और जलजा नव लक्षणानी, कि जो जल में रहने वाले वो कितने हैं, 9 लाख वो हैं। क्रमयो रुद्र संख्याया, जो पृथ्वी पे रहने वाले हैं, रेप्टाइल सर्प सरीसृप जितने हैं वो कितने हैं, 11 लाख। पक्षिणाम 10 लक्षणम, पक्षी कितने हैं, 10 लाख। तो 11 और 9 20, और 20 40, और 10 50 हो गए। पशुआ 30 लक्षाणी, और 30 लाख पशु हैं, उनकी योनियां हैं 30 लाख। चतुर्लक्षाणी मनुष्य, और मनुष्य कितनी योनि होगी प्रभु जी माता जी, चतुर्लक्षाणी, वो कितने हो गए, 4 लाख। इन 4 लाख मनुष्यों में जो बाकी योनियां हैं, चाहे वो देव योनि हो, चाहे वो पशु योनि हो, एक्वेटिक्स की हो, जितनी भी योनियां हैं वो सारी कैसी योनियां, भोग योनि। They all have to go through whatever they have attained by their activities. भोग योनि है। मनुष्य योनि ऐसी है जो कर्म योनि है, इसमें हम कर्म करके मनुष्य योनि में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और वो इसलिए जो प्रहलाद महाराज कहते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म, कि मनुष्य जन्म कैसा है, दुर्लभ है। और भगवान जब 11th अध्याय 11th चैप्टर के 54th वर्ष में अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन ने क्या कहा उनको, कि आप मुझे पहले अपना चतुर्भुजी रूप दिखाइए, फिर द्विभुजी रूप दिखाइए। भगवान कहते हैं कि सुदर्शनम इदम, कि मेरा सुदर्शन, इतना सुदर्शन, जो मेरा इतना अच्छा रूप तुम देख रहे हो इस समय, वो कैसा रूप है, वो देवता भी देखने के लिए तरसते हैं उसको, वो भी लाइन में खड़े रहते हैं उस रूप को देखने के लिए। वो हमको कैसे पॉसिबल है, इस मनुष्य जीवन में हमारे लिए पॉसिबल। क्यों, भगवान के दर्शन जब हम करते हैं, श्रीमद्-भागवतम के 11th कैंटो में बताया गया कि 8 प्रकार से भगवान के विग्रह को हम बना सकते हैं। शैली, पत्थर से बना सकते हैं, दारूमयी लकड़ी के हो सकते हैं, वो चित्र के रूप में हो सकते हैं, पेंटिंग के रूप में हो सकते हैं, वो किसी बालू से बना सकते, रेत से बना सकते हैं, मन के अंदर मनोमयी और मणिमयी। तो अलग अलग प्रकार से 8 प्रकार से भगवान के विग्रह हो सकते हैं। लेकिन वो विग्रह वैसे ही हैं कि साक्षात भगवत स्वरूप है। अगर हमारे पास वो भी नहीं है तो श्रीमद् भागवत हमारे पास भगवत स्वरूप है। और हमको इस संसार में मी एंड माइंड से, आई एंड माइंड से निकलना है, मैं और मेरे से निकलना है, तो उसके लिए हमको इस श्रीमद् भागवत भगवत गीता की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी, जैसे प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में लिखा है। ऋषभदेव बड़ा स्पष्ट ऋषभदेव ने बताया कि हमारा संसार में फंसने का जो मूल रीजन है, जो रूट कॉज है, वो क्या है। ऋषभदेव कहते हैं 5
कैंटो 5th चैप्टर वर्स नंबर 1 and 2। वो क्या कहते हैं ऋषभदेव? जब अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं 5.5.1 में, वो कह रहे हैं कि माय डियर बॉयज, all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification। इसी स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा सा देखें। हम लोग सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, 1 घंटा ट्रेन का सफर किया, 8 घंटे काम किया, वापस थके हारे आ गए, और आने के बाद में बच्चों के संग बैठना है, कुछ टीवी देखना है, फिर प्रसाद लेना है, और उसके बाद में सो जाना है। अगले सुबह फिर उठना है, फिर वही कार्य चल रहा है हमारा। तो ये जो कार्य है, जीवनचर्या है, जो हमारा रूटीन है, वो क्या है? पशुओं से भी गिरा बिरा, क्योंकि इसके अंदर भगवान के लिए समय ही नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हार्ड जो जो हार्ड वर्क है, वो डे एंड नाइट आप कर रहे हैं, सिंपली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, which is available even for dogs and hogs। ईशोपनिषद में पहला जो मंत्र है, उसमें क्या बताया गया? ईशावास इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कि इस पूरे जगत में ईशावास्यम, भगवान ने हर जीव के हिस्से का निश्चित किया है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ में उसको क्या मिलना है वो भी निश्चित हो जाता है, और किस रूप में और कब मिलना, इस समय, स्थान, परिस्थिति, सारी चीजें निश्चित होती। जब वो निश्चित है तो फिर इतनी हार्ड लेबर जो ऋषभदेव कह रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए? बट व्हाट शुड वी डू? वन शुड एंगेज इन द पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी टू अटेन द डिवाइन पोजीशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति की दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए हमको तपस्या करनी है और पेनेंसेस करने, तपस्या करनी है। He attains eternal blissful life। अगर वो वैसा करता है तो क्या मिलता है हमको? देखिए, 2 चीजें हमारे सामने प्रभु जी, माता जी। एक तो तरफ है कि हम लोग हार्ड लेबर करते रहें, गधे की तरह लगे रहे, तो हमको अगला जन्म मिलेगा। हमने सोचा चलो बहुत पैसा कमा लिया, बहुत सारे पुण्य करेंगे, पुण्य करके हम लोग स्वर्गलोक में चले जाएंगे। कृष्णा ने उस सब के ऊपर पानी फेर दिया। 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? त्रैविद्यमाम सोमपापूत पापाय दृष्ट्वा सुगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् एतं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्मं मनु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। Those who are following these 3 Vedas, not only this, they think no, we have to go to heaven, स्वर्ग में जाना है हमको, वहां पर देवताओं के भोग भोगने हैं। इतने सारे पुण्य किए, इतने सारे वेद पढ़े, उनके पुण्य करके हमने इतने यज्ञ किए, सब कुछ किया, दान किया, और पुण्य इकट्ठे हो गए, स्वर्ग में चले गए। लेकिन क्षीणे पुण्य रक्ति मृत्यु लोकम विशन्ति, वहां जाकर के हमारे पुण्य क्षीण हो गए, वापिस हम पृथ्वी पर आकर के गिर गए। गतागतम काम कामा लभन्ते, हमारा आना जाना चक्कर लगा रहता है। तो अगर हम ये हार्ड लेबर करते हैं तो हमको क्या मिला? गतागतम काम कामा लभन्ते। चाहे हम उसमें कितनी भी यज्ञ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका उद्देश्य अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन है तो हमारी ये स्थिति बनी रहेगी। दूसरी तरफ अगर हम भक्तिमय सेवा करते हैं तो साफ साफ लिखा है, सब भगवान ने साफ साफ बताया है, उससे हमको इटर्नल ब्लिसफुल लाइफ मिलती है। भगवान के धाम में जाने के बाद में शाश्वत दिव्य आनंदमयी जीवन हमको वहां पर मिलता है। और इसी श्लोक के प्रपोर्ट में प्रभुपाद ने लिखा है कि ह्यूमन लाइफ मीन्स वॉलंटरी प्रैक्टिसिंग सफरिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। मार्क करके रख लीजिए आप लोग कि ह्यूमन लाइफ का मतलब क्या, मनुष्य जीवन का मतलब क्या है? स्वेच्छा से, किसी के दबाव में नहीं, स्वेच्छा से हमको क्या स्वीकार करना है? सफरिंग, जो कष्ट हैं, किस चीज के? जो हमको पेनेंस में कष्ट मिले। अभी सुबह 4 बजे आप सब लोग उठे हैं, स्वेच्छा से उठे हैं, पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं, दिन भर जाएंगे, फिर आके काम, ये स्वेच्छा से करना है। उसके करने से लिखा है कि ये किसके लिए चाहिए? फॉर एडवांसमेंट इन दी स्पिरिचुअल लाइफ, भक्ति में जो जीवन है उसमें बढ़ने के लिए आगे। हाउएवर
human beings should voluntarily accept suffering in the form of austerities and penances. Austerities penances में स्वेच्छा से करना है in order to attain the divine life. And after attaining the divine life, one can enjoy the happiness eternally. प्रभु जी हमारे पास कितना टाइम है अभी? 8:40 प्रभु अभी 8:40 हुए. You can take 5-10 more minutes. 5 minutes. Okay. तो इसका जो अगला श्लोक है उसमें ऋषभ देव ये बताते हैं कि किस तरीके से प्रभुपाद जी ने पर्टिकुलरली 5.5.2 hundreds of his lectures he has quoted this verse. Hundreds of purports he has quoted this verse. महासेवा द्वारमुमुक्ते समो द्वारम युषिताम संगी संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन यवासुर्दा साधवो ये. तो क्या कह रहे हैं? one can attain the path of liberation from the material bondage only by rendering service to the highly advanced spiritual personalities. महत सेवया कि जो हाईली एडवांस पर्सनैलिटीज हैं उनकी सेवा करके इस मार्ग में जाकर के हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं. एंड दीज पर्सनैलिटीज आर इम्पर्सनैलिटीज एंड डिवोटीज. बड़ा स्पष्ट कहा है कि दो तरीके के लोग हैं जो भक्त हैं, एक तो भगवान के साकार रूप के और एक निराकार रूप के, इम्पर्सनलिस्ट एंड डिवोटीज. वेदर वन वांट्स टू मर्ज इनटू द लॉर्ड्स एग्जिस्टेंस or wants to associate with the personality of Godhead, one should render service to the Mahatmas. अब आपकी चॉइस है, आपको भगवान के जो उनका विराट उसमें मर्ज होना है या भगवान के भक्तों की संग्रह करना है, वो आपकी चॉइस है. बट वो कब प्राप्त होगा? जब आप सर्विस करेंगे किसकी? महात्माओं की. फॉर दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन सच एक्टिविटीज, वेरी क्लियर, हु एसोसिएट विद द पीपल फॉन्ड ऑफ वुमेन एंड सेक्स. जो लोग स्त्री और स्त्री सुख के पीछे जाते हैं, path to hell is wide open. नरक का द्वार कैसा है? पूरा खुला हुआ है. The महात्मास आर equipoised. जो संत लोग हैं, जो महात्मा हैं, वो कैसे हैं? समदर्शी हैं. They do not see any difference between the living entity and another. महाआत्मा वो कौन है? जो भेदभाव नहीं करता, सबको समभाव से देखता है, एक से दूसरे में वो नहीं, भेदभाव नहीं करता. दे आर पीसफुल एंड फ्री इंगेज इन डिवोशन सर्विस. शांत भी हैं और भक्तिमय सेवा में भी लगे रहते हैं. दे आर डिवॉइड ऑफ एंगर, क्रोध नहीं है. एंड दे वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन. दे डू नॉट बिहेव इन एनी एमोनेबल वे. सच पीपल आर नोन एज महात्मा. And Prabhuji Mata, just to understand this me and mine, basis is what? Basis the man and woman relationship. And because of this, the moment we have attraction, the next stage is we get child, then we have full family, then increase the family entanglement, keeps on going. We are not saying here that Bhagavad bars one should not marry. No. Bhagavad Gita was given to Arjuna, who is a Grastha, his family. But living कर्माणि संगम तत्वानुपया लिप्यते न पापेन पदम पतन विभावसा. कि like is the padam pantam vivambasa, like the lotus flower in the water pond, in the mud, it is not touching the mud, it's not touching the water, it is all above that. That's how we should be living in the family life and in the society and in the country. But our focus, association must be with the Mahatmas and these people, Prabhuji Mataji. And this, the me and mine is so strong. We see in the Chaitanya Charitamrita, I will not go to the story, I will just tell you the few things on that. That pastime of Kesav Kashmiri.
maybe you all of you know, the Kesav Kashmiri, what was his position? He has the blessings of Mata Saraswati. And because of that, he could defeat each and every one. Whomsoever he is doing the Shastras, sabko hara diya. Ultimately, he comes to the where? Navdeep. And Navdeep, he asked, who is the best person to debate with? Chaitanya Mahaprabhu. All the Brahmanas, they thought, if Nimai Pandit is defeated by this person, we are very happy because his glory is going so high. And if he defeats Nimai Kesav Kashmiri, then we are. So after getting even the boon from the Mother Saraswati, after defeating everyone, then what is the result? Finally, he is defeated by the Chaitanya Mahaprabhu, who is just mere boy. At 11 years of age, he started teaching. At 11 years of age, Chaitanya Mahaprabhu. And he is defeating Kesav Kashmiri. And finally, Kesav Kashmiri, who accumulated so much wealth, Chaitanya Bhagavat says, he accumulated so much wealth, he accumulated so much certificates that I have defeated. And all those who defeated, they became his servant also. That was the condition. If I defeat you, you have to follow me, come with me, you become my servant. All your wealth is becoming mine. And like that, he was so much high on the eye side that he simply ignored everyone, but finally he was defeated. So that is the result, Prabhuji Mataji. Me or mine, whatever it is, if you see, it is always problem, giving a problem. And if you see how much is the our body, if you know the Dadichi story, says Dadichi, he simply gave his bones to Indra. So he doesn't have any affection for the cause of Indra. He gives his body. Such a nice discussion. Sometime is available. Please read this story of the Dadichi Maharaj. It gives you so much insight to us. We should be living in the I and mind, or we should be living in the only Krishna. So that should be our position, that we should be always living in the Krishna. Prabhuji Mataji, I think time is up. And this me and mine, although it is very difficult to live, we are in the material world, but the Bhagavatam is showing, Śrīmad-Bhāgavatam is showing the way how we can get away from the me and mine and fully surrender to Sri Krishna. Hare Krishna, Prabhuji Mataji, thank you so much for listening patiently. And we can have, Prabhuji, maybe in 5 minutes, some question answer. If anything is there, we can take Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much for a very nice, wonderful session, Prabhuji. Hare Krishna. किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो you can type in the comment box or you can unmute your mic and ask. Hare Krishna. So today is Independence Day also, and we hope to get independent from material energy. Yes. Yes. And tomorrow will be a special class on Janmashtami. Tomorrow, Prabhu? कल ही रख ली प्रभु जी, जन्माष्टमी में कोई मिले ना मिले. जन्माष्टमी तो 19th है ना प्रभु? जी जी. Oh, so continuously it will go on. Okay. हरे कृष्णा. तो लगता है किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है. तो thank you so much प्रभु जी for taking time, and you know your late night. Thank you so much for. I think now 11:21. Hare Krishna. So we'll offer Vaishnava Pranam and conclude the session. Vancha kalpatrubhyascha vipasya patitanam vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय. श्री गौर निताई की जय. श्री प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Wish you a very happy Krishna consciousness. Hare Krishna.